Thank you all. Please be with us. And just to move further, we know कि as already well said कि 12th 5-year plan, which was in 2017, estimated that less than 5% of the Indian workforce in the age group of 19 to 24 receive formal occasional education, whereas in the country like USA, this figure is 52%, and in Germany it is 75%. In South Korea, it is 96%. How it can be covered up in National Education Policy 2020, and what is the gist, especially focused to our students. I would request Professor Goman ki please you enlighten us, especially to our students and community, ki what is the add-on other than the classroom teaching which we are imparting, that is not only sufficient to get the employable in the corporate MNC. So please you enlighten our students, our community, we all for this purpose. Please. Good evening, dignitaries. I hope I'm audible. Yes, yes, please. Okay, thank you so much. So it's a beautiful piece of document, a great work of art, and but the piece and the real essence is in implementation. So I have been given a task for vocational part, but I'll tell you a few things just to build the context. The first thing is that key part for any policy is leadership. Leadership of the institution, not of the country. Because we are great masters of manipulation. Great masters. ना चाहे वो accreditation का system है, चाहे वो ranking का system है, education में कोई चीज आ जाए, we are great. We bring everything to a number and we get that number and get it done. है ना? So I know it very well, and that's truth. So, but I'm feeling so good that we have leaders like Professor Jain, who's leading slide. The reason is I could feel that intent, the drive to do something really good. And the second, it is also coupled with his understanding of the reality. So these are the two things which a leader must know. This is where I really want to go. This is my reality also. And then he thinks that, okay, whatever little I can contribute to take the journey forward, he will put his best of energy. So I'm feeling very good listening to you, sir. I think something will happen at your institution, certainly. So coming to vocational part is concerned, vocational is not socially saleable. We have to understand this. Because why a students, like we all are here, would we send our children for a vocational course? Let's ask a question. So if something is not socially saleable, we have to first make it socially saleable. अगर घर में लड़की की शादी होनी है, लड़के की शादी होनी है, चाहे वो कुछ नहीं करता, वो बीटेक है, हमारे एक फैमिली का पेट्रोल पंप है, उसमें एक बीटेक मैनेजर लगा हुआ है पेट्रोल पंप पे ऊपर ना, सो उसकी शादी हो जाएगी. लेकिन क्या हम ऐसा ही जो ITIs, डिप्लोमा होल्डर्स, वोकेशनल होल्डर्स, क्या उनको सोशली रिस्पेक्ट दे सकते हैं एज ए सोसाइटी? जैसे ही हम उनको देनी रिस्पेक्ट, जैसे जर्मनी है, I go a train at a company, Grossbeck at Asia, which is a German multinational in India. They pay highest respect to a technician on the shop floor. Why they feel is he or she is the person who's producing things for me. And there the salary of technician is one of the highest in the company. Really, they pay very, very high to their technician, and they use the term technician with a lot of respect. So in our case, lab attendant, even if we look at our educational institution, how much respect do we give to our lab attendant? In the whole system, what is his appreciation? What is his standing? It is at his place where vocationally everything has to happen. So we need to understand that to build the whole system, it has multiple layers. Yes, vocational is very important. Rather, India needs more vocational. We need very less BTech. We need very less MBAs. We need more BBAs. Because most of the work has to be done by these people. Planning का कितना का काम है इंडिया में? थोड़ा सा है. बाकी तो 125 करोड़ के मुल्क में उसको इम्प्लीमेंट करने का ही है. तो वोकेशनल, और अगर हम अपना इस चीज को एनरिच करें, आई थिंक, बट द ओनली प्रॉब्लम इज वोकेशनल के लिए हमारी जो टीचर हायरिंग पॉलिसी है
वो भी कई बार खराब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करेंगे, तो जो हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेके भी आएंगे, उनको पढ़ाने वाले टीचर की उस पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जगह क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसको, ना उसको स्टूडेंट इंपॉर्टेंस देगा, ना उसको इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंस देगा, वो एक बिल्कुल पेरिफेरल सा हो जाता है। तो उसका सब्जेक्ट भी लोग कहते हैं कहानियां हैं, ऐसे ही पास हो जाएगा, इसको अलॉट कर दो, उसको दे दो। एक हम उसको अपने सिस्टम में वोकेशनल को, इंटरडिसिप्लिनरी एलिमेंट्स को तभी हम बिल्ड कर पाएंगे अगर हम उनको सिस्टमिक रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट करेंगे। एंड लीडर्स विल प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल। अदरवाइज पॉलिसी में दो चीजें होती हैं, आई विल कंक्लूड बाय दिस, वन इज स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज इंटेंट। हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर बच जाएगा, एंड यू विल सी जो हम 5+3+4 कह रहे हैं ये बच जाएगा, ये एंट्री एग्जिट बच जाएंगी, ये सारी जो मैकेनिकल सी चीजें हैं ये बच जाएंगी, और जो आत्मा में जो वर्ड होलिस्टिक ये वाली चीजें यूज हो रही हैं ये सारी फिर हवा हो जाएंगी। सो लेट अस, वी नीड लीडर्स लाइक यू प्रोफेसर जैन, एंड we are really hopeful that leaders like you will come forward in their institutions and not think too much about what is happening all over the world, all over India. ट्रंप क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये उनको करने देते हैं। मेरी छोटी सी दुनिया है, इसका मैं लीडर हूं, भगवान ने मुझे इतना बड़ा काम सौंपा है, इन लोगों की जिंदगियों को बनाने का काम एक बहुत ही बड़ा कर्तव्य है, और वो करने लायक काम भी है, ना सिर्फ कि उस चीज का है, और आपके अंदर वो इंटेंट है। So thank you very much for having me, but I hope under your leadership vocational will be respected. Interdisciplinary people, lab attendants are respected. They are called for meeting sometime by director. What's happening in your lab? Directors visiting lab and experiments are happening over there. Just making sure that yes, this is something really good happening here. This is where my engineers are being built. I will be there. I will go and see what is happening over there. So those are the things I think that leadership is required. Policy बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत चीजें बड़ी खतरनाक भी होती हैं। थैंक यू सर। रियली थैंक यू सर। मैं डॉक्टर मिश्रा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। वेरी ट्रू। हम मल्टीपल एंट्री एग्जिट की बात कर रहे हैं, हमारे पास स्लाइड में ये ऑप्शन है। हम स्टूडेंट, इफ अ स्टूडेंट विश आफ्टर 2 years ही कैन गो आउट विद अ सर्टिफिकेट। हमने कोशिश की, 3 साल के बाद वो डिप्लोमा लेके बाहर जा सकता है। हमने कोशिश की, लेकिन वो बाहर जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि सर्टिफिकेट के बाद जो जॉब मिल रही है या जो रिस्पेक्ट मिल रहा है वो इज नॉट बेसिकली अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। तो ना पेरेंट चाहते हैं ना बच्चा चाहता है। तो एग्जिट का ऑप्शन तो मैंने बता दिया, बट वो पेपर पर ही रह दिया। वो लड़का तो डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा बाद BE करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा सोसाइटी में इंजीनियर है तो रिस्पेक्टेबल। तो आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि हम एग्जिट का ऑप्शन दे तो रहे हैं, देना चाहिए, लेकिन उसको सोसाइटी में उस वर्क को हमने हर जॉब को रिस्पेक्टेबल बनाना है। एक तो अर्निंग विद सम, दूसरा डिप्लोमा के बाद 10 से 12 हजार रुपए का जॉब ऑफर मिलता है, वो भी एक डिमोटिवेशन है। कोई भी कैंडिडेट सोचता है 10,000 में कैसे काम चलेगा, मैं लुधियाना में रहूंगा कैसे, हाउ इट बी आई विल सर्वाइव। फिर वो क्या सोचता है, ठीक है मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, शायद इंजीनियरिंग करने के बाद जो है 50,000 का मिल जाएगा। इंजीनियरिंग करने के बाद शायद वो जो है 10 का जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा होता। तो हमको, मैं कई बार कोशिश करता हूँ बच्चों को समझाने की कि जो आप मिल रहा है उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंडस्ट्री में काम सीख के अपनी वैल्यू बनाने की। आप अपनी वहां वैल्यू बना लीजिए। जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसका ओनर खुद कहेगा इस व्यक्ति को मुझे जाने नहीं देना है। लेकिन इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब को रिस्पेक्टेबल बनाना पड़ेगा। स्पेशली वोकेशनल की हम बात कर रहे हैं कि मैं जो मन करता है वो काम कर रहा हूं, वो काम करने के बाद अब मन भर गया है, पढ़ने आता हूं और पढ़ के और नया काम करूंगा। तो उसके लिए ये जरूरी है। मैडम से मैं सहमत हूं, सोसाइटी में हमको वैल्यू किस चीज की करनी है ये तो डिसाइड कर लें। हम हर जॉब को, हर प्रोफेशन को, हर पर्सन को रिस्पेक्ट दें तो ठीक है ये बदलाव। लेकिन समाज पे भी तभी आएंगे जब ये आने वाली जनरेशन,
मैं समझता हूँ अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, हम गाड़ी से ट्रेवल कर रहे थे और हमारे एक साथी थे, उन्होंने कांच खोल के गाड़ी में से कुछ बाहर फेंक दिया। मेरे बेटे ने इमीडिएटली इंटरप्ट किया, अंकल आपने बड़ी भारी गलती की। ये वो जनरेशन, इनको स्कूल में सिखाया जा रहा है, अब इनके दिमाग में वो चीज बन, हमारे लिए बहुत मामूली है। मैं तो जंगल से निकल रहा हूँ, हाईवे पर फेंक भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, ये बच्चे ने टोक दिया और वो लाइफ लॉन्ग मेरे दिमाग में वो चीज जहन भर घूमेगी, बच्चे ने मुझे टोका। ये जनरेशन जब जाएगी इस फीलिंग के साथ, तो निश्चित रूप से बदलाव आएंगे। Thank you, sir. Thank you. Wish you all the best. Wish Just you I the want to best. inform to all कि वोकेशनल एजुकेशन जो हमारा स्लाइड का बर्थ है उसके साथ जुड़ा हुआ था, और जितने भी पुराने हमारे फैकल्टी कलीग हैं, हम लोगों ने 2000 में प्रोफेसर चौहान साहब ने इस पर एक बहुत बड़ा फार्मूलेशन किया था पूरे स्टेट के लिए। बूटा सिंह सर को पता होगा कि जब वो डीन एकेडमी, हम लोगों ने स्लाइड एक और प्रोफेसर ठाकुर थे JS MHRD के, तो बहुत बड़ा हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया था वोकेशनल एजुकेशन पर, और उसमें पॉलिसी बनाने पर ये हुआ था। हम लोग वेन्यू थे और उस पर काफी डिस्कशन हुआ था। अशोक ठाकुर वो थे JS MHRD, सारे वाइस चांसलर रजनीश अरोरा सर, और आप शायद डीन एकेडमी उस समय थे, और स्लाइड उसका वेन्यू था, और हम लोग 2-3 दिन लगातार उसको प्रिपरेशन को किए थे, डॉक्यूमेंट किए कि हाउ टू गिव द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी टू जस्ट ऑनर एंड फैसिलिटेट द विथ डिग्री, जिसमें मोची के लिए क्या होगा, कोबलर और जितने और भी पेंट हैंड ऑन जो ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको स्लाइड कैसे सर्टिफाई करेगा, उस पर एक नेशनल लेवल का एजुकेशनल फ्रेमवर्क, एंड आई एम हैप्पी कि आई वाज आल्सो पार्ट एट दैट टाइम, और हम लोगों ने किया, लेकिन वो पॉलिसी कहीं छूट गई और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ऑल्दो उस समय 2000 से लेकर के 2003-4 तक बड़ी एक्टिव हम लोगों ने काम किया एसोसिएशन विद PTU, लेकिन वो कहाँ रह गया वी डोंट नो कैसे। और बूटा सिंह सर शायद याद आया हमें, और वो कुछ इनलाइट करेंगे। जस्ट वो काफी अच्छी, उसमें आई थिंक चेयरमैन AICT इज आल्सो देयर, वी वर्क हुई थी, दैट इज वन ऑफ द गुड, आई कैन से आई हैव जॉइंड इट फॉर 1 डे ओनली, बहुत अच्छा था। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हम यही बात कर रहे हैं ना कि जैसे इन्होंने पैसा ने बताया कि पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी को हमने कैसे मैनिपुलेशन करके जा तो इम्प्लीमेंट करना है या करना ही नहीं है ना, कि हम पहले ऐसे जाते हैं कि एक बार सुन लेते हैं क्या कहते हैं, होना तो कुछ नहीं है, होना तो कुछ नहीं है। अपनी एक इंटेंशन पहले ऐसी रहती है कि हमने जो करना तो वही है, ये पॉलिसी बन गई कोई नहीं, इसमें भी सब कुछ मिल जाएगा, लूप होल निकल जाएंगे, इधर नहीं तो हम करेंगे वही जो हम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्यूमेंट बना बाद में, जैसे पैसा बता रहे थे कि आपके जो सर्टिफिकेट कोर्स है ना, वो भी जो 2 साल वाला है, उसको जब हमने उसके इक्विवेलेंस कराया +2 के, तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट की मूवमेंट इसलिए बनी कि वो कहीं और इंजीनियरिंग में दाखिला ले लें। वन ऑफ द पॉइंट, जब हम 1 साल का या 2 साल का कोई कोर्स डिजाइन करते हैं तो उसको थोड़ा जो देख के ही करना पड़ेगा कि उसके लिए आगे क्या ऑप्शंस है। एक बहुत बढ़िया कि उसको कोई काम मिल गया, छोड़ के चला गया, बाद में उसने पढ़ना है तो फिर आ जाएगा, लेकिन जाएगा तो ही अगर काम मिलेगा। अगर हमारा कोर्स ही ऐसा कुछ मिलेगा नहीं तो वो कहाँ जाएगा, मतलब दिस इज द मेन इशू। जो करिकुलम है उसको भी हमने उसके रिलेटिवली अब कुछ चेंज करके बनाना पड़ेगा कि ताकि जो मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट वाला सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाए। नहीं, थैंक यू सर। और इसलिए याद है कि उस समय हमने फिर जब वोकेशनल एजुकेशन की पॉलिसी पे बात हो रही थी तो हम खड़े हुए थे और अशोक ठाकुर साहब से पूछे थे कि सर हमारा क्या होगा, कि हमारी डिग्री क्यों नहीं मान्य हो रही है, क्योंकि उस समय एक केस था जम्मू हाई कोर्ट में, जहां हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट जम्मू कश्मीर रीजन के, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लियर कर लिया था जेई के लिए, और उनको जम्मू स्टेट इसलिए जेई पर नहीं रख रही थी क्योंकि वो हमारे डिप्लोमा थे और उस डिप्लोमा का जो नॉर्म उनके स्टेट में था वो नहीं था। तो वो एक पेन थी हमारे दिमाग में, और हम अशोक ठाकुर साहब से कहे थे कि जो IS लॉबी है, जो JS लोग हैं, वो पहले विल पावर स्ट्रांग करें इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इट इज राइटली सेड, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर सच वोकेशनल एजुकेशन।
तो अब हम लोग अंतिम पड़ाव में है इस डिस्कशन के, और ये बिल्कुल सही है जैसा सबने कहा कि टीचर को कोई रोक नहीं सकता। जो चीज हार्ट और ब्रेन से गवर्न होती है उसको जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। तो ये सारा इतना वेल डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन हम ही तो हैं जो इनलाइट करेंगे सोसाइटी को, हम ही हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे सर ने कहा, डायरेक्टर साहब ने कि जो सरकार, तो सही है, यहाँ के सरकार तो हम सारे टीचर हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर सरकार है, और जो पॉलिसी बन गई उसको एक अच्छे इंटेंशन से हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो जस्ट टू कंक्लूड द सेशन, आई वुड रिक्वेस्ट अगेन और ऑनरेबल डायरेक्टर सर, प्लीज कंक्लूड दिस टुडे सेशन ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये हम लोग जारी रखेंगे। वी आर हैविंग ए वेरी डायनेमिक लीडर विथ अस, और सर हम लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर डिस्कशन, इस तरह के और डिस्कशन हम लोग फ्यूचर में भी प्लान करेंगे विद कारपोरेट सेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ टीएनपी आल्सो, इन अदर डिपार्टमेंट आल्सो, वी विल प्लान इन फ्यूचर आल्सो। तो सर प्लीज। थैंक यू प्रोफेसर मिश्रा। मेरा ख्याल है इंडस्ट्री से अतुल तिवारी जी और निखिल कौशिक जी शायद जुड़ने वाले थे, वो नहीं हमारे साथ कनेक्ट हो पाए। अदरवाइज शायद हम इंडस्ट्री क्या सोचती है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, वो पॉइंट भी शायद इसमें मिल पाता, क्योंकि हमने कोशिश ही की थी कि हम उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भेजें। अकेडमिशियन होने के नाते वो हम लोगों के कार्य क्षेत्र में तो आ रही है, लेकिन ये लोग इंडस्ट्री में लोग अभी भी शायद उसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं निकाल पाते। ये कोशिश थी कि हमने कुछ लोगों को जोड़ा था, भेजी भी थी कि वो पॉलिसी पढ़कर अपने विचार रखेंगे, लेकिन चूंकि हमारा ये कार्यक्रम पहले 26 जनवरी को होना था, उनकी कंसेंट 26 के हिसाब से आई थी, फिर कुछ कारणों से एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी से हमने उसको 28 कर लिया, तो आज वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कि कुछ नहीं, यदि वो हमको सुन के ही उनको यदि पता लग जाता कि ऐसी प्लानिंग चल रही है और इसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सर एक मिनट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक क्वेरी है एक बच्चे की, तो इफ विथ योर परमिशन फर्स्ट वी कैन टेक, देन वी कैन कंक्लूड द सेशन। Sachin, can you hear me? Sachin is the BTech final year students, and yes, Sachin, please, yes, you on your video and you raise your query. Yes, sir. On behalf of evening, students. Yes, sir. Please. This session was very insightful and thoughtful. So I have one query. How will these new education policy reforms will be implemented and take how much time? सचिन, इसके लिए एक्चुअली कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नई एजेंसीज भी कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं। एक तो जैसे आप लोग जानते हैं AICTE UGC, अभी हमारे पास 2 बॉडीज हैं और इनका मर्जर होकर 4 अलग अलग एजेंसीज बन रही हैं जो इस एंटायर पॉलिसीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन का काम देखेंगे। फिर हाउ की जो आप बात कर रहे हो, यस, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ही बड़ा है, जैसे प्रोफेसर बूटा सिंह जी ने बताया कि इसमें अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अभी हमको पहले ये देखना होगा कि जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हर एक का रोल कैसे फिक्स होगा। तो उसमें 2030 बल्कि रादर 2040 तक एक ये प्लान है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होगा जो 2040 टारगेटेड है, और उसके पहले जो क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस होंगे, देयर विल बी नो अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। जैसे PTU जालंधर की यदि हम बात करें या महाराजा रंजीत सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यूनिवर्सिटी में 50 से ज्यादा 100 और कहीं कहीं 200 तक कॉलेज हो गए हैं। तो मुझे याद है पहले जब हम लोग इंजीनियरिंग किए, मैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, हमारा जो कॉलेज था चाहे वो मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो या सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, हम लोग बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे, और एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, साइंसेस, आर्ट्स, कॉमर्स सारा कुछ होता था। बाद में टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जरूरत महसूस हुई और सारे इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। लेकिन अब ये देखा कि MP में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 200 कॉलेज है, तो शायद निश्चित रूप से कंट्रोल में इफेक्टिवनेस नहीं आ पा रही है। हम अब उसको सोच रहे हैं कि 2 या 3, जैसे पंजाब ने 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दी, PTU जालंधर अलग हो गया और महाराजा रंजीत सिंह यूनिवर्सिटी, ताकि वो टोटल कॉलेजेस अब स्प्लिट हो गए।
कुछ इसी सोच के साथ में ये डिसाइड किया है कि 2, 3 या 4 मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट का क्लस्टर होगा और उनकी एक ऑटोनोमस गवर्निंग बॉडी होगी। कोई अफिलिएटेड का कंसेप्ट नहीं रहेगा, एक अच्छी चीज है, इससे हर एक फोकस रहेगा। और दूसरी चीज ये है, जो टारगेट है कि अभी जैसे हमारे लोग सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं आईआईटी में मुझे एडमिशन मिले, लेकिन ये भी सच है कि 20,000 स्टूडेंट्स को ही आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। बाकी जो 9,80,000 में 10 लाख स्टूडेंट है, 9,80,000 को तो बाहर जाना ही होगा। तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का इंस्टीट्यूशन होगा उसी को ये प्रयास है कि वही आईआईटी के लेवल की, आईआईएम के लेवल की एजुकेशन क्यों नहीं दे रहा। आज संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट आईआईटी लेवल की एजुकेशन जिस दिन देने लगेगा, मेरे आसपास जो स्टूडेंट रह रहे हैं वो बॉम्बे या अहमदाबाद या इधर जाने की बजाय वो मेरे इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ेंगे, और वो हम सभी के लिए उचित ही होगा। फिर अपनी स्पेसिफिक जरूरत के हिसाब से आप जा पाएंगे, लेकिन केवल इसलिए आप आईआईटी मुंबई में जाना चाहते हैं कि वो टॉप लेवल एजुकेशन देते हैं, वो शायद ये होगा कि उसी लेवल की एजुकेशन संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी देगा। तो ये काफी सारी उसमें भी प्लानिंग है और फेज्ड मैनर में है। स्कूल एजुकेशन से अभी इसकी शुरुआत हो रही है, जो 2023 से टारगेटेड है कि वहां पर जो हमने नए फॉर्मेट में 3+2+5+4 ये इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद ये हायर एजुकेशन में 24-25 से इसके आपको जो प्लान्स हैं वो देखने शुरू हो जाएंगे। अभी रिसेंटली हमको एक मिनिस्ट्री से सर्कुलर मिला है जिसमें हर एक इंस्टीट्यूशन को अपना एल्यूमिनी सेल कॉन्स्टिट्यूट करके उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया है। ये उसी का एक पार्ट है, ये उसकी शुरुआत है कि इंस्टीट्यूशंस में हर एक जगह एल्यूमिनी सेल हैं, लेकिन वो कहीं चल रहे हैं, कहीं इफेक्टिव नहीं है। उस मॉडलिटी को शुरू करने के लिए हमारे को गाइडलाइन भेजी गई है। उस गाइडलाइन के हिसाब से अब हमको इस पर्टिकुलर सेल को एक्टिव करना होगा, जो अभी एक ऑटोनोमस मोड में था। मैं एल्यूमिनी सेल है, वो कुछ कर रहा है तो अच्छा, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। अब हमको उसको शेप में लाकर इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन लेवल पर ले जाना होगा। तो गाइडलाइन वहां से आई है। अब उसको मुझे उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली मेरे जो एल्यूमिनीज है उनका रोल क्या होना चाहिए ये फिक्स करने की जरूरत उस सेल के माध्यम से मैंडेटरी हो जाएगा। तो इन नियर फ्यूचर सचिन, वी विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि आप हमारे एल्यूमिनी सेल का पार्ट बने, और जो कमियां आपको लगती रही हैं कि जब आप पढ़ रहे थे जो चीजें नहीं कर पाए, वो अब इन स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी जो आपसे अपेक्षा है, टीचर्स के लेवल पर हम लोग हमेशा ही सेल्फ एडजस्टेड हैं, हम छात्रों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो एज ए एल्यूमिनी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्रोफेसर सुखचरण सिंह जी सेल देख रहे हैं, उनसे कनेक्ट करें और स्टूडेंट्स को आप इस चीज के लिए कन्विंस करें कि यदि टीचर्स की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई गाइडलाइन दी गई है तो हैव ट्रस्ट, क्योंकि वो हम लोगों का स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस है टू नॉट टू ओबे द गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। और पिछले 30 साल का हमारा अनुभव है कि ये क्यों जरूरी है। तो कई बार बगैर इफ्स एंड बट्स के आपको आपसे जो करने के लिए कहा जा रहा है उसको पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करें और हमको सपोर्ट करें, ताकि हम जो दूसरी एक्टिविटीज आपकी एनर्जी चैनलाइज करने से बचने, रोकने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, वो एकेडमिक वर्क में लेकर जाए। थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी आगे बात बढ़ाता हूं कि आज का जो आउटकम हमारा निकल के आ रहा है, जैसे कोठारी साहब ने कहा कि हमको सर one more query is there with your permission, last query. मेरे ख्याल में हमारे एक्सपर्ट को हम देख लें, इनका समय हो रहा है। हाँ, just sir, last query it is already, and this is addressed to Professor Ghuman sir. Parul want to ask anything. Parul, are you here? Can you hear me? Yes. You have written. First of all, thank you for such a knowledgeable session. So my question for you, sir, is that you rightly said that we need more BBAs, but as you must be knowing that mostly vocational courses like BBA, say BCom or BCA, they are not taken into consideration.
And many times we as a student feel that are we like wasting time on doing a degree for 3 years because it is not rightly considered academically, whereas a BBA graduate and if there is any other graduate, they are considered a graduate, whereas they say that after we don't think also that we'll get a good job after this graduation. But Okay. the main point I have understood your question, and because we have less time, so let me respond it a bit early. Yes, sir, yes. So, for you all, good time is about to come. Let me tell you, portray a scenario. The startups are coming. And startups, once they come in a big number in India, they do not respect degrees too much, to be honest. They are looking for people who can really do the job well. So startup entrepreneurs, they themselves, some of the times, do not have degrees from prestigious institutions as well. So what they feel is they will be looking the person at merit and less from the angle of degrees. So then if I am opening a startup tomorrow and I get a BBA who can deliver much better than an MBA, and I know BBA will going to be stay with me because BBA will not be frustrated doing that job, which an MBA will get frustrated while doing the job. So instead of having a frustrated MBA, I would like to have a motivated BBA. So understand this. So because there were bigger companies, they had bigger norms and policies. So there the MBA was must. There the BTech was must. But once these startups, they start coming, they will see, I need a person who can deliver. Whether he's +2 and he has done some course online through Udemy or Coursera or anywhere else, if he can do my job, he's the candidate for me. So times are going to come. It may take some more time, but as these startups grow in large number, unconventional recruitment will start happening. And it will take some time, but it's going to come. That's my view on this. Thank you. Thank you. Thank you all. Now I would request Director, sir, please. Okay. So, Sachin, meanwhile, मैंने आपके लिए वो एजेंसीज के नाम भी निकाल लिए हैं कि ये एजुकेशन कैसे होगा. बेसिकली एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने वाला है, HECI, जिसमें अब आप UGC AICTE इंटीग्रेट हो जाएंगे. फिर जो टोटल एजुकेशन है उसके लिए 4 डिफरेंट बॉडीज हैं: रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. ये मॉनिटरिंग करने के लिए 4 अलग अलग एजेंसीज बन रही हैं. नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC बन रहा है. फिर एक नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC, जो एक्रेडिटेशन संबंधित एक्टिविटी देखेगी, जो क्वालिटी मेंटेन करेंगे स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस, उसको मॉनिटरिंग करेंगे. एक हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बन रहा है जो फंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट देखेंगे कि हर एक इंस्टीट्यूशन को सुटेबल फंडिंग हो. और एक जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC बनने वाला है जो एकेडमिक स्टैंडर्ड मॉनिटर करेंगे. तो ये 4 बॉडी हैं, नेशनल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं, और वो रेगुलेटरी, एकेडमिशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग एक बड़ा इशू है. हम प्रॉपर फंडिंग हर इंस्टीट्यूशन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं कर पाते. हमारी रिक्वायरमेंट 1 करोड़ रुपए की, हमको 50 लाख रुपए मिला हुआ है, और अब जो जरूरत मेरी 1 करोड़ में पूरी होनी है वो 50 लाख में हो नहीं सकती. मैं आधा अधूरा काम करके वो 50 लाख में उस काम को करने की कोशिश करता हूं जिसके लिए मेरी 1 करोड़ की जरूरत है. या मैं अपनी कई बार असेसमेंट प्रॉपर नहीं करता हूं, मेरी जरूरत तो शायद कुछ लाख रुपए की है, मैंने अपनी जरूरत करोड़ रुपए में क्रिएट कर ली, फंड मिल गया तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं है. तो ऐसी काफी सारी चीजें अब एक नेशनल लेवल पर मॉनिटरिंग होगी. और एकेडमिक स्टैंडर्ड भी अकॉर्डिंगली 4थी एजेंसी जो मॉनिटर करेगी. जो मैं ये कह रहा हूं, उसका उद्देश्य ये है कि डिस्ट्रिक्ट में इस लेवल का इंस्टीट्यूशन हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूशन हो जो IIT, IIM या सिमिलर अपने जो भी फील्ड में टॉप यूनिवर्सिटी है उस लेवल की एजुकेशन लोकली इम्पार्ट करे. सो आई होप मैंने भी कुछ डेटा निकाल लिया था जब तक ये क्वेश्चन चल रहा था, आपको कुछ हद तक अपने क्वेश्चन का जवाब मिला होगा. Yes, sir. So to conclude, जैसा कि कोठारी साहब ने कहा था कि हमको सबसे पहले तो ये जो हमारी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई है उनको हर एक को पढ़ने की जरूरत है कि हम सब उसको थॉरोली पढ़ें. एक बार नहीं, कई बार उसको पढ़ना पड़ेगा, ताकि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आए तो हम अपना रोल उसमें निर्धारित कर सकें कि मेरा रोल उसमें क्या होना चाहिए, बजाय इसके कि आपको बताया
जाए, आप खुद इनिशिएटिव के साथ में आए कि हमारा रोल ये हो सकता है। अवेयरनेस ऑल स्टेक होल्डर्स, छात्र जहां जुड़े थे, ये कार्यक्रम को हमने मेनली स्टूडेंट्स के लिए रखा था। 150 रजिस्ट्रेशन भी हुए थे, और चूंकि हमारी लिमिट है कि 150 इस प्लेटफॉर्म पर हम इंक्लूड कर पाएंगे, तो हमने हमारे जो इंटरनल फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर्स थे उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी, काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं आए। तो एनीवे, अब हमको समय समय पर स्टूडेंट्स के मन में भी क्यूरियोसिटी है। अब जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर मिश्रा कि हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए ये प्रोग्राम करें, ताकि उनकी अपेक्षाएं क्या है ये भी हमको ड्यूरिंग एजुकेशन ही मिलती रहे। तो हम ये वेबिनार्स, कुछ वेबिनार के रूप में, कुछ हम अब इसको जो है हाइब्रिड मोड बनाए, ताकि इन पर्सन भी बैठ सकेंगे, और कुछ लोग का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, जो रिमोट प्लेसेस पर बैठे हैं उनको हम ऑनलाइन सुन पाएंगे। एप्लीकेशन ओरिएंटेड हमारी जो अप्रोच है वो अभी भी रही है, लेकिन अब हम इसको और रिफाइन करके लेकर आए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इनकी एनर्जी चैनलाइज हो थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और वो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के टारगेट के साथ में स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट पर काम करें। जैसे अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, किसी आईआईटी की कोई एक इंफॉर्मेशन आई थी कि 5 साल बाद स्टूडेंट्स ने एक रोबोट बना पाए हैं जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक पहुंच पा रहा है। सो से फॉर एग्जांपल, यदि हम मेडिकल साइंस की बात करें, रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी, ऐसा कोई रोबोट बना पाना जो सर्जरी कर सके, ये करने का काम हर स्टूडेंट चाहता है मैं रोबोटिक्स में काम करूं। अब ये जो रोबोट्स हम बन रहे हैं, शुरुआत करें और उसको इस लेवल तक लेकर जाएं कि वो नॉलेज मेरी इंप्रूव होते हुए जो नेक्स्ट बैच स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ फेज लर्न उस लेवल का मिले, ताकि वो अपनी लर्निंग रिफाइन करके नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सके, ताकि हम प्रोडक्टिव आउटपुट ड्यूरिंग द एजुकेशन टेन्योर है तभी कंट्रीब्यूशन उन स्टूडेंट से ले सके। लैंग्वेज के बारे में निकल कर आया है, यस, 3 लैंग्वेज पॉलिसी निश्चित रूप से हमको हेल्प करेगी। मैं एक बार पुनः दोहराऊंगा, हमारी संस्था में हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हमारे छात्र या पंजाबी जानते हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के स्टूडेंट स्पेशली पंजाब के स्कूल में उनकी पंजाबी में एजुकेशन हो रही होती है। और चूंकि हमारा जो मैंडेट है वो हमने उन एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स को ही मेन टेक्निकल एजुकेशन में लेकर आना है, जो 10वीं के बाद आगे 11वीं 12वीं ना पढ़े बल्कि टेक्निकल एजुकेशन में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें, तो वो पंजाबी बैकग्राउंड से होते हैं। तो कितना अच्छा होगा जब हमारे सभी टीचर्स को पंजाबी भी आएगी, वो भाषा में छात्र समझ सकेगा, उस भाषा में मैं उसको समझा पाऊंगा। लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर। अभी चूंकि मैंने ये कहा गया मुझे कि मुझे अंग्रेजी में ही पढ़ाना है, अब मुझे अंग्रेजी जिस भी लेवल की आती है मैं उस लेवल पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं। मैं कुछ कम कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, छात्र उसका कुछ समझ पाता है और अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन उसमें हो रहा है। तो अब हमारी भाषा बैरियर नहीं होना चाहिए। 3 भाषा मुझे पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो मैं पंजाबी में भी पढ़ा पाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ा पाऊंगा, अंग्रेजी में भी पढ़ा पाऊंगा। तो छात्र जो समझ पा रहा है, ऑफ कोर्स जरूरत है मुझे यदि इंटरनेशनल लेवल पर काम करने जाना है तो मैं अंग्रेजी में अपने आप को एक्सपर्टाइज दूंगा। मुझे नहीं जाना है, मुझे पंजाब के रूरल एरियाज में ही काम करना है, अंग्रेजी काम चलाऊ आ जाएगी, चल जाएगा काम, मुझे इंग्लिश में उतना एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये निश्चित रूप से लेकिन ये स्कूल से शुरू होगा। स्कूल एजुकेशन, हाँ, हमारे लिए जो कर सकते हैं हम बात, मैं कुछ समय तक मध्य प्रदेश में एक हिंदी विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन रही है उससे जुड़ा रहा हूं। वहां हमको सिलेबस बनाने के लिए कहा गया था। बुक्स लिखने की बात आती है, हिंदी में बुक्स अवेलेबल नहीं है हमको। यस, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ने एक शुरुआत की है जिसमें हिंदी या जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल कराने के लिए कहा गया है। सो वी टीचर्स कैन टेक द इनिशिएटिव। जो भी हमको लग रहा है कि यूजफुल हो सकता है, हम अच्छी रीजनल लैंग्वेज में टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित बुक्स तैयार करें। ये अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है डॉक्टर मिश्रा? हमारी इस सेल का जो है वो एक कंपोनेंट हो सकता है अवेयरनेस प्लस उस जो जरूरत न्यू एजुकेशन पॉलिसी की होगी उससे रिलेटेड फैसिलिटीज एडवांस में क्रिएट करना। जब आप रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन देंगे तो रीजनल लैंग्वेज में आपको बुक्स अवेलेबल होना चाहिए।
तो यदि बुक साथ में नहीं लिखी जाएगी तो फिर एक वैक्यूम होगा और फिर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाएगा। तो ये एक हम शुरुआत करें। मैडम की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मल्टी डिसिप्लिनरी की हम बात करते हैं वेरी फ्यू, तो निश्चित रूप से हम कोर जो कंपोनेंट है वो तो रहेगा ही, लेकिन हम केवल साथ में एक अपॉर्चुनिटी दे सकें कि 2 साल बाद मुझे यदि समझ में आता है कि मुझे ये विषय नहीं, मुझे पर्टिकुलर स्ट्रीम है, जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वो मैकेनिकल का मतलब होता है हम ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस हो जाती। तो यदि मेरा ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल का बिल्कुल मतलब ऑटोमोटिव नहीं है, मैकेनिकल में दुनिया की इंडस्ट्री की मशीन से संबंधित है, लेकिन उस दौरान यदि मुझे समझ में आता है कि बाकी सब छोड़कर मैं केवल ऑटोमोटिव एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहता हूं, तो हम ये ऑप्शन उसको दे सकें कि यस, बीच में ही कहीं वो अपना ट्रैक चेंज करके बाकी चीजें छोड़कर अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम की तरह डाइवर्ट हो सके, तो जो हमारे अभी तक क्रेडिट अर्न्स हैं उनके साथ वो आगे बढ़ सके। परहैप्स कुछ इस तरीके की कल्पना मल्टी डिसिप्लिनरी में की गई है कि बीच में कहीं अभी शायद मुझे घुमन सर कह रहे थे या किसी एक एक्सपर्ट ने कहा था म्यूजिक के बारे में, यदि आपका रुझान बढ़ रहा है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा है, ठीक है, आप अपना करियर म्यूजिक में बना लीजिए, लेकिन इसकी एक बड़ी जरूरत है कि हम खेल, संगीत, कला, ये जब बातें कर रहे होते हैं तो ये जो इन स्ट्रीम्स की जो पढ़ाई है उनको हमको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना पड़ेगा। ये इन सारे फील्ड्स को हमको रोजगारोन्मुखी बनाना पड़ेगा कि आप यदि आप बात कर रहे हैं खेल, तो आज हमारे देश में क्या खेल प्रोफेशन है? नहीं, केवल हम टॉप लेवल की बात कर सकें, जो नेशनल लेवल पर प्लेयर चला जाता है वो तो ठीक है, बाकी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में यदि प्लेयर्स रहे हैं वो आज गुमनामी में जी रहे होते हैं। वो ये कह पाना है कि मैंने डिग्री हासिल नहीं कर पाई क्योंकि मैं खेल में मेरा मन लगता था, लेकिन उस खेल को आज मैं रोजगार नहीं बना पाता। हमको ये करना पड़ेगा कि यदि वो है वो लोकल लेवल पर कोच बन जाए, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह जरूरत है, तो उसके बेसिस पर ही शुड बी एबल टू जनरेट सफिशिएंट अमाउंट फॉर लाइवलीहुड। तो हम वहां पर अपॉर्चुनिटी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। हम काफी लोग ऐसे जानते हैं जिनका संगीत में शौक है, लेकिन संगीत से वो अपनी जीविका नहीं चला पा रहे, क्योंकि जब मैं शौक की बात करता हूं कि आप क्या करते हैं, मैं संगीतकार हूं, शौक तक तो ठीक है, नहीं, लेकिन आप करते क्या है? हमारी ये फीलिंग है, करते क्या है, मतलब मैं नौकरी क्या करता हूं, काम धंधा क्या करता हूं, यानी मैं संगीतकार हूं तो वो मैं कुछ करता, ये डेफिनेशन नहीं है। ये हमको चेंज लाने होंगे। तो पहले जब हम एग्जिट ऑप्शन की बात करेंगे, एग्जिट ऑप्शन के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या हैं उनको रिस्पेक्ट देना होगा, वहां सफिशिएंट लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी देनी होगी। जैसे मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं, भोपाल में हमारे यहाँ एक, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ कोर्सेज बनाए थे अलग अलग स्ट्रीम में, एक दुकान है, वो उन्होंने एक छोटी सी गुमटी है, उन्होंने दुकान के बाहर लिखा हुआ है जूतों का डॉक्टर। मैंने उस व्यक्ति के अंदर एक ज़ील देखी, वो अपने आप को जूतों का डॉक्टर कहते हैं, उन्होंने लिख रखा है हर प्रकार का जूता मैं यहाँ रिपेयर करता हूं, बैग रिपेयर करता हूं। और यस, एक दिन मैं वहां सामने से निकल रहा था, वो बोर्ड पढ़ा और उसके बाद मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैं अपना एक पुराना जूता लेकर गया। मैडम, मैं ये कहता हूं उस व्यक्ति के बातचीत, बोलचाल, हाव भाव से मुझे इतना आनंद आया, उनके मन में कहीं ये था ही नहीं कि मैं एक मोची जैसा छोटा काम कर रहा हूं। और रियली मैं उनके साथ बैठकर आधा घंटा मैंने एंजॉय किया, बातचीत की, उनके साथ अपने थॉट शेयर किए। उनका कहना था आई फील प्लेजर इन डूइंग दिस जॉब। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको इक्वल स्टेटस दें। दैट इज ट्रू। तो बट ये है कि वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति था जिन्होंने उस काम को खुशी से अपनाया। हमारे लोग इसलिए नहीं अपनाते कि हम कहते हैं कि वहां रिस्पेक्ट नहीं। तो ये होगा, ये समाज में बदलाव लाने होंगे। और निश्चित रूप से जब हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, इसमें कहा गया स्कूल से ही स्किल्ड एजुकेशन की शुरुआत है। कक्षा 5 के बाद 6, 7, 8 में आपको कारपेंट्री,
आपका टेलरिंग, गार्डनिंग, ये इस तरीके के काम करने होंगे। हमारे बच्चे की यदि हम बात करें, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, यदि मैं बगीचे में काम करने के लिए कहता हूं तो इनको ना सॉइल के बारे में कुछ पता है, ना पौधों के बारे में पता है, ना उन टूल्स के बारे में कुछ पता है। वो पार्क में घूम ले तभी तो पता चलेगा। यस, वो किताब में ही पढ़ा हुआ है। तो अब जब वो कक्षा 6, 7, 8 में टेलरिंग करेगा, कारपेंटरी करेगा, तो हो सकता है 12वीं के बाद जब मुझे मैं कहता हूं मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं अपनी जीविका चला पाऊंगा कारपेंटरी करके, टेलरिंग करके या गार्डनिंग करके। यस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। फिर उस दिन मैं ये सोचने लगूंगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, केवल डिग्री अर्न करके नौकरी लेने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये चीजें जब स्कूल से मिलते हुए आएंगी हमारे पास। कई बार हम ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन में जब स्टूडेंट आता है तो वो ऑलरेडी एक रिजिडनेस के साथ आता है, हाँ, तो उनको बहुत मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हम ये बच्चों के साथ महसूस करते हैं कि मैं, जैसे पीटी की बात मैंने की, जब हमने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पीटी शुरू की, जब हम खड़े रहते हैं, वार्डन पहुंच गए तो आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं आती। जब उनसे पूछा जाता है ये होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, यानी आप जानते हो ये जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन आप करना नहीं चाहते, क्योंकि वो स्कूल के लेवल से एक उसमें अलग तरीके की फीलिंग होकर आ गई है। अब हम उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो हर स्टेज पर करना होगा, केवल स्कूल नहीं। स्कूल में शुरुआत होगी, मिडिल लेवल पर थोड़ा सा उनका एडजस्टमेंट एबिलिटी होगी, और जब हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे तब हम उनमें वो फर्म डिटर्मिनेशन लेकर आ पाएंगे। लेकिन एक टॉपिक मिश्रा जी ने रखा था, रोल ऑफ फैकल्टी। रोल ऑफ फैकल्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये केवल हम हैं जो इस कल्चर को डेवलप कर पाएंगे, और उसके लिए जरूरी होगा कि हमको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। एंड वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। जब मैं इस प्रोफेशन में आ गया हूं, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर AGP 6000 आपकी मिनिमम सैलरी पर्टिकुलर स्लैब में, पर्टिकुलर सेल में है। इसका मतलब उस प्रोफेशन में आपकी जीविका के लिए इतने पैसे आपको मिलेंगे, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। और इसके बाद आगे प्रमोशन मिल रहा है, हाइक मिल रहा है, ठीक है, नहीं तो उसके साथ में मुझे अपना पूरे डिटर्मिनेशन, मेरी जीविका चलाने के लिए अब मुझे सैलरी मिल रही है, मैं ब्लेस्ड हूं। लॉकडाउन है तो सैलरी मिलेगी, छुट्टी है तो सैलरी मिलेगी, और मुझे क्या चाहिए? मुझे ये सोचना नहीं है आंधी तूफान, बाढ़, बारिश, तूफान, सर्दी, मुझे अपनी सैलरी मिल रही है। अब मैं अपना 200% उस काम के लिए दूं जिसके लिए मैं बना हूं। ये फीलिंग की जरूरत एक टीचर को है। सो आई होप this discussion has definitely basically vibrated our mind, और जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ सुन रहे हैं वो आगे अपने मित्रों को कहेंगे कि पॉलिसी को पढ़ें। मिश्रा जी, आगे आप प्लानिंग करिए कि एक हम वो, जैसा मैंने कहा, क्विज कंपटीशन करते हैं। इससे एक क्विज बनवाइए जिसमें हम सभी को कहेंगे आप पढ़कर आइए, और उससे पता लगेगा कि हमने उसको कितना पढ़ा, कितना। Okay, thank you, sir. All the speakers with your permission, sir, with your permission, I think for role of faculty, our eminent speaker, Vice Chancellor, MS, ETU University, is already here continuously. So, yes. Sir, your quick remark for us, for role of faculty, and Professor Bhargava ma'am also. Then we will conclude. Sir is already motivating always all the faculty of the institute. So I want from your quick remark, Professor Bhuta Singh. Sir, please. Yeah. And in the meantime, I would request everyone, please on your video so that for a group photo for our record purpose. Okay, sir, please. Bhuta Singh, sir, please. Yeah. Regarding what I have to update? Sir, role of faculty, because sir has already motivated us. Okay. Role of technical faculty, according to this policy, I think, although it is discussed in detail, but I think if I am a faculty in technical education, then my role is whatever the role of faculty for higher education, plus whatever the technology involved to update this education policy, as Professor Kumar has also discussed
you have also updated regarding vocational education. The vocational education, the data is there. We have only a very limited, very poor performance in that, and maybe that is because of we don't have further like any type of the policy after 10+2, because it is earlier up to a school level only. But if we open like some professions in our institutions according to, then automatically more student will opt for the vocational education. Second is, as being a teacher in technical institutions, then the professional institutions, our role is complete, like you have to find out the skill gaps relatively when we are planning our curriculum, when we are developing our curriculum for this 1-year certificate course, 2-year certificate course. The study for that skill gap is must. We have to make a compliance or our curriculum relative to National Skill Education Framework. That is a must. When we are compliance to that, our curriculum automatically we are defining what we are offering to our students in first year, in second year, in third year. These things are needed to be worked upon, because then there is a national technological information form is there as per this new policy. So that is basically we have to make an interface with them, how we update our knowledge as well as the different ways to develop it, what type of information should be there, all related to a technology. As being technical teachers, we have to develop new types of the things, how we can simulate a knowledge, as told by many of the earlier panelists also, because now the system is like that. We have to offer education in both in physical mode as well as in online mode. So that online technology, how we can make it more effective by adding technologically certain things into that. What type of innovation we can play for that, so that student can receive properly the education through online mode, as well as I think, although it is not an alternative for physical mode of education, but we have to offer our education in both of the modes in the time to come. Maybe many of the developments took place because of this post condition now, because now we are already providing that online. So these are the many of the roles that needs to be played by the technical education teachers, because the involvement of technology is more relatively as per this new education policy. Thank you, sir. May I request Madam, please, for a quick closing remark. Ma'am, please, for us. I talk for mathematics teachers who are teaching to the different sort of mechanical, civil, and so on and so forth. So your example should be pertaining to that department, so that the students can appreciate what we are doing for that. And if we put a little effort, we can do it for everything, for every section. That's it. Thank you. Our Dean RNC, Professor A.S. Dhaliwal, has joined from long. I think he is attending the session. Sir, your closing remark for NEP 2020. Very quick closing remark. I think that we are talking about the national education policy, and we have discussed a lot of things. And we have seen that there are some theoretical, you can say that, papers, and we have to make these papers a practical one. So one thing I want to add, so we have to see that how to, you can say that, to connect the education to the research, and then research to the practice. So all what is required now in India. Okay, thank you. So then we have to see that we have to make a smart move. Smart means, S means specific, M means measurable, then A means achievable, and R means realistic, and then time bound. So that smart move is required. Yeah. On paper, we have a lot of things. On paper, you can say that multi-exit, multi-entry, and all that system in the 1986 or 1991 policy of our institute was made on those policies and all that. But we have failed in our effort. So we have to see how in a particular time bound we can achieve the objectives which are put up before us. This is my... Thank you, sir. Thank you. Now, last but not least, we have our colleague. May I request him, Professor M.S. Manna? Can you hear me?
Yes, sir. Yes, Professor sir. M.S. I'm hearing Banna, he is a very good speaker and he's really a set of slide. So, a training placement officer and motivational speaker. He also worked sometime in AICT as a director of AICT. So, I would request him to extend on behalf of Slide family the vote of thanks. Professor Manna, please. Thank you very much, Professor Mishra ji, to giving this very good assignment to be just मिश्रा propose जी a vote of फोटो thanks लेना to. ना भूल जाए. I have taken, sir. I have taken, and once again, I would request everyone just on your video. Sorry, on your photo, audio मन्ना and जी video. अपना वोट ऑफ थैंक्स जारी रखें and I request all the participants available in the meeting to switch on please your camera so that Dr. Mishra can take a photograph. Yeah, please. Thank you, sir. Please go ahead. सबसे पहले मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ प्रोफेसर शैलेंद्र जैन जी का, डायरेक्टर SLIT लोंगोवाल, जिन्होंने आज पूरा कार्यक्रम इतनी खूबसूरती से निभाया है शुरू से लेके. मैं उनको पहले 4 बजे से सबसे पहले वो ज्वाइन कर गए थे और उन्होंने जो आज ये जो दरी बिछा रखी थी मिश्रा जी ने, उस पर जो उन्होंने फूल घड़े हैं और हर शब्दों को जितने अच्छे से उन्होंने पॉलिसी के हर एक पन्ने को मेरे ख्याल कितनी बार ही उन्होंने पढ़ लिया है, शायद उन्होंने इसके ऊपर मुझे लगता है 3-4 PhD भी करवा दी होगी कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज को बहुत थोड़ा सा पढ़ा है है मैंने अभी. बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पॉलिसी में जो कहा गया है ना वो चीजें हम जानते हैं कि होनी चाहिए. जी बिल्कुल सही कहा सर. और आज मुझे बहुत खुशी से मैं आभार प्रकट करता हूं श्री अतुल कुठारी जी का. इतने उन्होंने संक्षेप शब्दों में पूरा सार ही बता दिया. उन्होंने वर्ड कहा कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक अप्रोच दे रही है पॉलिसी. बहरहाल इसके बाद तो इस पॉलिसी के ऊपर चर्चा की शायद जरूरत ही नहीं रह जाती है. बिल्कुल ठीक. जब ऐसे शब्द उन्होंने कह दिए और ऐसे बुद्धिजीव जब आके ऐसे शब्द कहते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कुछ दूसरी सोच ही नहीं बननी चाहिए. हमारे बीच में जो आज कुछ हीरे दूसरे इंस्टीट्यूशंस के महाभावी हमारे बीच में प्रोफेसर बूटा सिंह जी. प्रोफेसर बूटा सिंह जी को मैं आज से नहीं बहुत सालों से जानता हूं और उनकी जो पकड़ है एजुकेशन सिस्टम में, उनकी जो पकड़ है एक टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में, उनको बहुत भली भांति जानता हूं. उन्होंने अपने शब्दों को बिल्कुल फलस्वरूप रखा है क्योंकि आज वो एक ऐसे मुकाम पर भी हैं, ऐसी पोजीशन पर भी हैं. हमारा आधा पंजाब उनके हाथ में है. अगर हमारे आधे पंजाब की टेक्निकल एजुकेशन की बात करेंगे तो प्रोफेसर बूटा सिंह जी का नाम लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो वाइस चांसलर है आज हमारे एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी पंजाब के. उन्होंने बिल्कुल सही चीजों को पकड़ा है और उन्होंने उसी के ऊपर जोर दिया है. हमारे बीच में अगर SLIT लोंगोवाल है तो NIT जालंधर भी है और प्रोफेसर अवस्थी जी को कौन नहीं जानता है. प्रोफेसर अवस्थी जी ने अपने ही उन शब्दों में उस बात को रखा और वो समझ भी रहे हैं कि जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जरूरत कहाँ अब पड़ने वाली है. We have to become to the role of mentors institutions to implement this NEP 2020. अगर हम मेंटर नहीं बनेंगे, छोटे होते भी हमारी कोई उंगली पकड़ता था, बड़ा भाई साथ में लेके चलता था. बड़ा भाई कई बार उम्र में भी होता है, कई बार अभ्यास में भी होता है और कई बार बड़ा भाई उनके पास जो सरकारी फंड है, गवर्नमेंट का फंड है, शायद वहां पर वो चीजें इंप्लीमेंट जल्दी हो सकती हैं. जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनको थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मेंटरशिप लाना जरूरी है. तो उन्होंने इस चीज को भली भांति समझा है और फिर बाद में जब मैडम की बारी आई, मैडम ने मेरा दिल ही जीत लिया. मैम आई एम रियली फैन ऑफ यू. यू आर अ रियल गुड ओरेटर. भार्गवा जी, मैं पहले कभी आपको मैं नहीं सुन पाया, शायद आपसे कभी मेरी भी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आपने एक एक चीज को जो पकड़ा है, क्योंकि पैनल डिस्कशन तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें क्रिटिक्स ना हो और ट्रू क्रिटिक आना और एक सच्चा शिक्षक ही ट्रू क्रिटिक्स दे सकता है. यही हमारे देश की त्रासदी भी रही है. हम विरोधता करते हैं, विपक्षता नहीं समझते. आज अपने विपक्ष वाला जो माहौल बनाया और विपक्षता वाली बात की है, आई रियली सैल्यूट यू मैम. आई रियली सैल्यूट यू. और करमजीत जी तो हमारे सबके चहेते, स्टूडेंट्स के चहेते, घुमन साहब हमारे थापर के प्रोफेसर जिन्होंने भली भांति मैनेजमेंट को अच्छे से समझा हुआ है और उन्होंने अपनी मैनेजमेंट के दायरे में रहते हुए और अपने शब्दों के साथ जो आज उन्होंने यहाँ भूमिका निभाई है. Really, you are the fan of many students, sir. I know that. हमारे फेवरेट टीचर होना और फैन होना अलग चीज होती है. आपका फैन क्लब बहुत बड़ा है. I know it very well. आपने बहुत अच्छे से आज अपनी भूमिका निभाई इस पैनल डिस्कशन में. अब मैं आगे बढ़ूंगा. हमारे 2 चुनिंदा डीन्स, डीन एकेडमिक अफेयर्स, जो बिल्कुल साइलेंट मोड में रहते हैं, अच्छे ऑब्जर्वर हैं, लेकिन वो कम बोलते हैं और उस कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं. तो प्रोफेसर AS अरोड़ा जी हमारे डीन एकेडमिक अफेयर्स, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा क्योंकि डीन एकेडमिक जो होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होता है इंस्टीट्यूशन की. अगर लीडर डायरेक्टर होता है
तो डायरेक्टर के पास पॉलिसी होती है, डायरेक्टर के पास एक विजन होता है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन लेवल पे आके डीन्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसमें डीन एकेडमिक्स एंड डीन R&C, रिसर्च है, कंसल्टेंसी है, तो बच्चों में एक प्रैक्टिकल एबिलिटी आती है, बच्चों में कुछ करने का रुझान, क्योंकि वो फैकल्टी को मोटिवेट करते हैं, उसके लिए कंसल्टेंसी के लिए, प्रोजेक्ट राइटिंग के लिए, तो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे बीच में एस धालीवाल जी बहुत सीनियर प्रोफेसर है हमारे इंस्टीट्यूशन के, बहुत ही सीनियर प्रोफेसर, उन्होंने बहुत अच्छी बात और कम समय में लेकिन सही बात रखी है कि अगर रिसर्च को साथ में जोड़ेंगे तो इनोवेशन होगा, इनोवेशन होगा तो स्टार्टअप अपने आप आ जाएगा। फ्लेवर तो लाना ही पड़ेगा, ब्लेंडिंग तो करनी पड़ेगी। और आज इस पूरे कार्यक्रम में मिश्रा जी की भूमिका बहुत अहम रही है, क्योंकि शब्दों के भी बहुत अच्छे जादूगर हैं और अपनी कार्य शक्ति से उन्होंने जो कार्य किया है पिछले 4-5 सालों में हमारे इंस्टीट्यूशन में, मैथमेटिशियन होते हुए जो उन्होंने प्लेसमेंट की कड़ियां जोड़ी हैं, जो ट्रेनिंग का काम किया है, वो सच में बहुत ही उम्दा है। मैं सच्चे दिल से, ये नहीं कि मैं उनका कोलीग हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ, मैं सच्चे दिल से एज ए स्लाइड फैमिली मेंबर आपको कहता हूँ, मिश्रा जी सच में आपने बहुत अच्छा कार्य किया। हम आप सबके बहुत, स्लाइड आपका बहुत ऋणी रहेगा, बहुत ऋणी रहेगा। आप ऐसी ऐसी कंपनीज को स्लाइड में लेके आए जो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। ये आपका बहुत बड़ा कार्य था। और आज हमारे एचओडीज हमारे बीच में जो आए, सभी एचओडीज हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि वो पूरे डिपार्टमेंट की रूपरेखा चलाते हैं। भले वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से सचान साहब आए, चाहे हमारे सोडी साहब आए इलेक्ट्रॉनिक्स से, मरवाहा सर आए हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, हमारे बीच में हमारे यंग फैकल्टी मेरे कुलीग और आज एचओडी हैं केमिकल के अविनाश ठाकुर जी, सब ने बहुत अच्छे से। मैडम धीर तो हमारी वैसे भी सीजन्ड टीचर हैं हमारी इंस्टीट्यूशन की, वो एचओडी भी हैं और वो डीन भी रह चुकी हुई हैं, और उनकी बात में एक झलक आती है कि एक सीनियर पर्सन, एक सीजन्ड पर्सन बात कर रहा है। सो उन सब ने जो आज जितनी भी बातें रखी हैं, आई एम श्योर कि जो भी आज सुन रहे हैं और कल इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, आने वाले टाइम में इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी बाकी फैकल्टी मेंबर्स को जो किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाए, तो उन सबको ये पता चलेगा कि आज का ये 3 घंटे का कार्यक्रम अगले आने वाले 30 साल की रूपरेखा के बारे में बात कर रहा था। हम चाहे 2040 की बात करें, 2030 की बात करें, और 2050 भी इसमें आने वाला है, ग्रॉस एनरोलमेंट भी इसमें आ गया, आपका मेरू भी इसमें आ गया, सारा कुछ आ गया। और साइलेंटली बैठे हुए मेरे बाकी जो मेरे कुलीग्स हैं ना, जैसे कि डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल हो गए, गुलशन जावा जी हो गए, मेजर सिंह जी हो गए, इनको आज समय तो नहीं मिल पाया कि अपना आके कोई बात रखने का, लेकिन ये भी हमारी बाजुएं हैं हमारे मिश्रा जी की, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर है हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा है, इट्स अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन। वी आर कैटरिंग फ्रॉम सर्टिफिकेट टू डिप्लोमा टू डिग्री देन पीजी टू पीएचडी। आज हमारे इंस्टीट्यूशन में पीएचडी इतना फेवरेट हो गया कि हर जगह से आप देश का कोई कोने से बात कीजिए, वहां से बच्चा पीएचडी करने आया है, नॉट फॉर डिग्री, पीएचडी करने आया है। तो इसलिए मिश्रा जी को भी बाजुएं चाहिए थी, अच्छी बाजुएं दी हैं हमारे डायरेक्टर साहब ने उनको, वो हमारे बीच में थे। हिना दुआ एंड पारुल मिश्रा, अगर आपका मैं यहाँ पे धन्यवाद नहीं करूंगा ना तो बहुत छोटा रह जाएगा मेरा आज का ये वोट ऑफ थैंक्स। इतने अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे ही जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने इसकी रूपरेखा रखी, कितने अच्छे से आपने हमारे जितने भी आज अतिथि देवो भव वाली कार्यक्रम आपके हाथ में था, सबका इतने अच्छे से आपने स्वागत किया, इंट्रोड्यूस किया इस मंच के ऊपर। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पीछे छिपे हुए मेरे ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर के स्टाफ, चाहे सलीम है, चाहे कोई हमारे हेल्पर है, जो हमें चाय, मिश्रा जी ने चाय के बीच में चुस्कियों का आनंद लिया तो उनको चाय भी किसी ने परोसी होगी, हालांकि डायरेक्टर साहब को चाय पीने का बीच में अवसर नहीं प्राप्त हुआ, फाइलों में घिसे रहे, लेकिन ये सब स्टाफ का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम चला है। ये बहुत सही बात है। इसके साथ ही मेरे इंस्टीट्यूशन के सभी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं, इस नीति के साथ जुड़ने वाले हैं और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे और उन्होंने इसको यहाँ तक पहुंचाया, मैं सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। समय ऑलरेडी सीमा ज्यादा हो चुकी है, तो इससे आगे बातें नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे जुड़ने का प्रण कीजिए, विश्वास दिलवाइए, वादा कीजिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम आगे चलने वाले हैं और डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी इसकी नींव आज रख दी है, जिसका शिलान्यास रख दिया है। आप बुलाएंगे तो हमेशा आएंगे ना, वरना आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, तो बहुत पहले भी आते हैं। हम जरूर बुलाएंगे मैम, और आपसे आगे पूरा सुनना है, हमारे स्टूडेंट्स ने आपको बहुत कुछ सुनना है, आपको फिजिकली यहाँ पे इनवाइट करेंगे हम सबको, और आप सबसे सुनने का हमें अवसर होगा। इसके साथ मैं सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू प्रोफेसर बन्ना। एक ओनली सचिन एंड फ्यू स्टूडेंट्स दे वेयर बिहाइंड दिस प्रोग्राम, तो सचिन आप ऑन करो अपना वीडियो। सचिन और आयुष from very beginning they always behind the TNP and every task they used to do. So very Sachin nice. Or Ayush, can you hear me? And they are going to play one video again from the entire TNP family. और एक छोटा सा परिवार है हमारा, और प्रोफेसर बन्ना उसके एक बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं TNP परिवार के।
और प्रोफेसर इंद्राज सिंह, प्रोफेसर अश्वनी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। आपको पता है कि हमारे लेफ्ट और राइट में बैठे हुए हैं प्रोफेसर मेजर सिंह, हमारे डीन एकेडमिक सर भी टीएनपी में थे और अक्सर हम लोग 7 बजे तक रहते हैं यहाँ। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट माय टेक्निकल टीम टू प्ले द थैंक्स वीडियो टू एवरीवन on behalf of all the slide family. This is the Sachin video at the SCL, Bangalore. Just recently we have signed one MOU from Punjab government and project of DST for entrepreneurship development. 94.5 lakh rupees sanctioned by DST for entrepreneur. Thank you all. Thank you. Very good, very good. We thank you. Yeah, there's just one more video I would like. Okay. Just play. I'll just play it quickly and we can all. Yeah. This video I usually show to my corporate people when they visit slide in TNP department. So I introduce all the family in my office only. This is 3-minute video only. And this prepared by only my students, few final year students in TNP department itself. When I took the charge, the first thing I did this, I inspired the student to create this video in 2016 itself. This is my team TNP. Okay. And all the HODs. Very good, very good. We all are thankful. Entire slide family are thankful to all the guests. We enjoyed the evening. Thanks to all. Thanks. Very good, very good. Thank Enjoyed. you. Thank you all the guests. Thank you.